Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, after completing cell cycle, we'll be discussing cell division. Dear students, you know that life starts from a single cell. You all know that when during fertilization, the male and the female gametes fuse, they initially form a diploid cell which is called a zygote, and it is from that cell that the organisms gets developed, right? These cells multiply in number, undergo differentiation, right, and organize in different ways to form different organs, organ systems, and finally organism. And I have seen, that these organisms, whether plants, whether animals, they grow, right? They repair the damaged cells. So how is this all possible? It is possible by the way how cells multiply, and this multiplication of cells in which they increase their number is called as cell division, right? So we'll be discussing this cell division. Basically there are two cell divisions. One is meiosis and another is mitosis, right? Yes, there is a mitosis also. We'll be discussing that as well, but here today I'll be discussing with you the cell division mitosis. So mitosis is a cell division in which the cells multiply in number. The cells, but before undergoing this mitosis, we have seen that the cells prepare themselves for division, and that stage we call as cell cycle. You have seen previously, I have discussed with you in previous video clips that these cells, each cell undergoes the different phases: G1 phase, S phase, and then G2 phase. And in G2 phase it is now ready to divide, right? So in mitosis, what does mitosis mean? It is combination of two words: mitos, which means threads, right, and osis. Osis means state. So it is a division in which thread-like structures are formed. You will be knowing that what is the function of centrioles. Centrioles are there only to form that spindle, and in that spindle formation, thread-like structures, spindle fibers are formed, right, or produced by these centrioles. That is why the mitosis is called as this. Mitos means thread and osis means state. So it is a division in which thread-like structures, fibers are produced, right? And in amitosis we have seen that the nucleus directly breaks, undergoes constriction and forms two. But here it is the spindle fibers which help in division of the न्यूक्लियस, जो हम आगे अच्छे से जो है समझने की कोशिश करेंगे. सो टू गो ऑन विथ माइटोसिस, तो पहला पॉइंट जो है, माइटोसिस अब वो डिवीजन है जिसमें थ्रेड और फाइबर्स बनते हैं विच आर एक्चुअली स्पिंडल फाइबर्स, राइट? तो ये टर्म जो माइटोसिस टर्म जो है, इन प्लांट्स इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय स्ट्रासबर्गर. सो स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन्ड दिस माइटोसिस इन प्लांट्स. ठीक. इन एनिमल्स दूसरे साइंटिस्ट थे फिलिमिंग, ठीक है ना. फिलिमिंग ने माइटोसिस एक्सप्लेन की इन एनिमल्स. ठीक है बेटा. अच्छा, ये जो टर्म माइटोसिस ये भी दी थी फिलिमिंग ने.
So next point about mitosis is that this term mitosis was coined by, ये भी दी थी फ्लेमिंग ने, राइट। अच्छा, ये डिवीजन जो है कौन सा, माइटोटिक डिवीजन जो है ये सोमैटिक सेल्स में होता है, जो हैप्लॉइड हूँ या डिप्लॉइड हूँ। सो इट टेक्स प्लेस इन somatic cells which can be haploid or diploid. This is another point which you should be knowing about, हाँ, about mitosis। और एक अहम पॉइंट ये है, आपने देखा है जो नेक्स्ट दूसरा डिवीजन जो है मियासिस, वो मियासिस मखसूस होता है एक मखसूस किस्म की सेल्स में जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, जिनसे बाद में जो है गैमेट्स बनते हैं। बट इन जर्म सेल्स में भी ये जो है माइटोसिस होती है। आपने अगर आपको याद होगा, ये जो रिप्रोडक्शन में हम जो गैमेट फॉर्मेशन में हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, उसमें जब मल्टीप्लिकेशन फेज होता है तो वहाँ पे जो है सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो है इट आल्सो ऑकर्स इन जर्म सेल्स, दैट मीन्स ये सोमैटिक सेल्स में भी होता है और जर्म सेल्स में भी होता है। और एक पॉइंट जो है माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स की तादाद होती है, एक पेरेंट सेल से जो सेल्स बनते हैं उनका नंबर है 2, ठीक है ना। और वो दोनों सेल्स जो हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम होता है एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। उस लिहाज से इस डिवीजन को जो है इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। दैट मीन्स या इस डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन 2 डॉटर सेल्स कितनी बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स और फॉर्म्ड, अनलाइक दिस मियासिस वहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। मगर इनमें एक खुसूसियत ये होती है कि इनमें क्रोमोसोम नंबर हैविंग सेम क्रोमोसोम नंबर एज दैट ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है ना। इस वजह से जो है इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन because the chromosome number remains same, there is no change in the chromosome number of chromosomes in these what we call daughter cells, right। अब जो है ये माइटोटिक डिवीजन जो है ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। सो इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस, ठीक है सर। हाँ बेटा, तो वो 2 स्टेजेस हैं। पहला जो है दैट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सो कैरियोकाइनेसिस में हम लिखेंगे ये न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसमें सबसे पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है और इसको जो है कंप्लीट करने में 4 स्टेज लगते हैं। सो दिस कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस। अगर आपको याद होगा, मैंने ये जो एम फेज़ है हमारा सेल साइकिल में, जो वहाँ पे मैंने वो 4 स्टेजेस आपको बताए थे। और यहाँ पे मैं इनको फिर रिपीट करता हूँ। वो 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, 3 है एनाफेज और 4th स्टेज जो है दैट इज टीलोफेज। और with the completion of this telophase, now the nucleus divides. It forms 2 nuclei
और वो बिल्कुल उनमें जो है क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, सब जो सेलुलर मटेरियल होता है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। और इट इज फॉलोड बाय दिस karyokinesis or the nuclear division is followed by another division which is called as cytokinesis। क्योंकि न्यूक्लियस तो डिवाइड हुआ, अब जो है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना चाहिए ताकि ईच डॉटर सेल जो है इट गेट्स सेम quantity of this cytoplasm and the cytoplasmic these organelles। ठीक, सो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। So mitosis is completed in two phases. First phase is this karyokinesis and the second phase is this cytokinesis which is the cytoplasmic division, right? और इससे पहले जो है, अगर बेटा आपको याद है कि the cell has undergone this cell cycle, तो इसने खुद को प्रिपेयर किया हुआ होता है इंटरफेज के दौरान, है ना, फॉर डिवीजन। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा द सेल हैज़ प्रिपेयर्ड इटसेल्फ फॉर डिवीजन ड्यूरिंग, हाँ, इंटरफेज के दौरान इन सेल साइकिल। ठीक है, तो उस सेल में जो ये सेल विच हैज़ इंटर्ड द सेल साइकिल, जब वो इस स्टेज पे आते हैं कि नाउ इट इज़ कैपेबल टू अंडरगो दिस माइटोटिक डिवीजन और द मियाटिक डिवीजन, यहाँ पे जो है ये सेल माइटोटिक डिवीजन के लिए जो सेल चूज़ होती है, इस सेल का क्रोमोसोम नंबर जो है, इसमें यहाँ पे मैं लिखूँगा हैविंग, इसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n ही होता है, 2n होता है, क्योंकि अभी क्रोमोसोम्स नंबर में इनके इनहेंस नहीं हुई होती है, वो इंक्रीज नहीं होते, वो मल्टीप्लाई नहीं हुए होते हैं। ठीक है ना, लेकिन डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल होता है। दैट मीन्स इस सेल में होता है सी वैल्यू, डीएनए कंटेंट को हम कहते हैं सी वैल्यू, वो होता है क्योंकि हैप्लॉइड सेल में सी डीएनए कंटेंट होता है सी, डिप्लॉइड में होता है 2C, क्योंकि अब ये डबल हुआ है दैट मीन्स इट इज़ नाउ 4C। ठीक, इसका मतलब है जो सेल इंटर होती है इस सेल साइकिल में, वो डिप्लॉइड होती है, उसमें जो है क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, लेकिन डीएनए कंटेंट जो उसका होता है वो इंक्रीज होता है। लेकिन फाइनली जो इससे दो सेल्स बनते हैं उनमें सेम होता है क्रोमोसोम नंबर एंड द सी वैल्यू। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये रिमाइंड कर दूँ, ये बिफोर डिस्कसिंग द स्टेजेस, आपने अगर याद होगा ये एनिमल सेल हम लेते हैं, यहाँ पे इस द सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे इसमें होता है न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है ना, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स, ये न्यूक्लियर पोर्स, और यहाँ पे जो है हम लेते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर द क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, ये क्रोमोसोम जो हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर देंगे 2n4, 4 क्रोमोसोम वाले, अगर हम 4 क्रोमोसोम वाली एक सेल को लेते हैं फॉर एवर कन्वीनियंस, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है क्रोमोसोम नंबर 2n है, और इसमें लेकिन ये जो सी वैल्यू है, सी वैल्यू इन ड्यूरिंग इंटरफेज, ये न्यू डीएनए जो है उसकी रिप्लिकेशन हुई होती है, और सी वैल्यू उसका होता है 4C। ठीक है ना, और ये हम कह रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेज। इसके बाद नाउ दिस सेल इंटर्स द कैरियोकाइनेसिस फेज, जहाँ पे जो है पहला जो है प्रोफेज होता है, और प्रोफेज में भी दो स्टेजेस होते हैं, अर्ली प्रोफेज एंड लेट prophase, and we will be discussing these stages in next video clip. Assalamu alaikum.